Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Riya Sharma. So today we are going to start with the chapter first of Political Science class 12, that is Challenges of Nation Building. So here we start. First of all, I would like to tell that if you want notes of political science plus economics plus geography, so you can go to my Instagram ID, that is 4569132 Riya. Okay, and I'll upload this chapter notes after making this video. Okay, so let's start. So first, what they are telling, that the challenges of new nation means, when our India got independence, when 1947. Okay, तो जब इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ले लिया, तो जब क्या क्या challenges, what challenges the India going to face now. So here they were trying to telling us that, okay, at 14 sorry at 14th और 15th अगस्त की मिडनाइट को, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस लेने ही वाला था, कब 14 to 15 August 1947, India attained independence. Okay, then Jawaharlal Nehru became the first prime minister of our India. Okay, ये सब important points नोट करने के लिए हैं, सिर्फ ध्यान अपने माइंड में नोट करने के लिए. They give their first speech on which trust with destiny. Okay, एंड इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये, कि जो उन्होंने टू चैलेंजेस थे उस टाइम पे, लोगों ने बोले थे कि ये चैलेंजेस हैं, दैट इज ऑफ देयर वर टू गोल्स, नॉट चैलेंजेस, देयर वर गोल्स, दैट जिसपे सभी एग्रीड हुए. फर्स्ट क्या था हमारा वो चैलेंज? फर्स्ट था that after independence we shall run our country through democratic government. हाँ, हम इंडिपेंडेंस के बाद अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में करेंगे, फेस करेंगे. सॉरी, यस वी आर हियर. यस, so we shall run our country, we shall run we shall run our country through democratic government. ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? And second one is the government will be run for the good of all, particularly for the poor and the social disadvantaged groups. Means जो poor people थे, first of all for the poor people. ठीक है, then उनका क्या था? then we shall run a democratic government. which government? democratic. So यही दोनों एम थे जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं. ठीक है, let's move to the next. Yes, here. It was going to be easy. And now अब इंडिया जो है born means इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में. ओके, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में. ठीक है, और जो ईयर था 1947, वो एक ऐसा ईयर था, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, ट्राउमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सारे में हड़कंप मच गया, लड़ाई झगड़े होने लगे, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लग गया because of displacement. Okay, it's what the situation at the time of independent India started its journey to achieve several objective. और ये उस समय का, उस टाइम की हम सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं, जब इंडिया अपनी जर्नी चलाई था अपने गोल्स को क्लियर करने, उनको अचीव करने. ठीक है, इस पेज पे सिर्फ इतना ही था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. यस, यू कैन सी दैट ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे खड़े, और ये इतनी सारी यहाँ पे ये क्राउड है. ये ओके, ये हमारा देश का झंडा है.
तो यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है आपको, इसमें भी बताया गया, देख, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फ्रंट। ठीक है, कब? 15 अगस्त 1947 में। हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, एक ये भी देख लेते हैं कि एंड ऑफ द 200 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब 200 इयर्स ओल्ड ब्रिटिश रूल अब फिनिश हो चुका था इंडिया में, तो ये सब न्यूज़ आ रही थी उस टाइम पे। हाँ, तो सबसे मेन है हमारा व्हाट आर द थ्री, yes, this one is main, that what are the three challenges faced by the India government? Okay, क्या थे वो three challenges? Let's see. First one is India faced three kinds of challenges. India faced three kinds of challenges. First, that immediate challenge was to shape a nation that was united. एक ऐसा nation shape करना जो कि united हो, मतलब freedom हो उसके पास, पूरी तरीके से unite हो, no constraint should be there, like that only. So that is what here telling that the its people spoke different language according to the different culture. So that's why the nation should be united here. ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की मांग करी गई है। ओके, अब देखते हैं आगे। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपेयर टू बी प्रूव एवरीवन वास्ट फेयर। तो ये सब ओनली ऑफ द रीडिंग पार्ट। ठीक है, हम अपने सेकंड चैलेंज पे चलते हैं, जो कि है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना। यू नो, श्रीलंका और sorry, Sri Lanka and India is the only country in South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) members who are able to continue with their democracy. Nevertheless, after independence, Bangladesh, China, sorry, not China, Pakistan, Nepal, और and Maldives, ये सब एक मतलब इन पे मिलिट्री रूल, सिविल वॉर, ये सब हुए, बट श्रीलंका एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री हु आर एबल टू कोप अप विद देयर डेमोक्रेसी। ठीक है, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी था हमारा सेकंड चैलेंज। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स सबको हम दे सके। ओके, इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ी फीचर्स थी इंडिया की। ओके, लेट्स सी। Sorry. To develop a democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. एक democratic constitution जरूरी होता है, पर वो इतना भी sufficient नहीं होता कि एक democracy establish कर दे। Yes, पाकिस्तान भी तो democracy के साथ establish हुआ था, फिर उसका क्या हुआ? Military rule लग गया, assassinations हुए कितने। Yes, तो यहाँ पे ये मतलब है। देन हमारा थर्ड चैलेंज था was to ensure development and well-being of the entire society, not only some sections. ओके, अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सब सेक्शंस को होना चाहिए सोसाइटी को, ये नहीं कि किसी एक को हुआ है किसी एक को नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे चैलेंजेस। फिर से वी हैव टू रिपीट, कौन कौन से? पहला हमारा था टू यूनाइट अ नेशन, फर्स्ट इज यूनाइट द नेशन, सेकंड वन इज to establish democracy, third one is if development should be in the well-being of the entire society. Okay, let's move to our main. Yes. Okay, ये जो यहाँ पे boxes, sorry, ये जो यहाँ पे boxes given है, okay, ये सिर्फ एक लेटर एक लेटर दिया गया हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने चीफ मिनिस्टर को दिया था 15 अगस्त 19 अक्टूबर 1947 में। अब आता है हमारा यहाँ मेन, sorry, that is
participation and displacement and rehabilitation. ठीक है, ये सबसे मेन है. ओके, लेट्स हम इसको भी देखते हैं. ओके, सो टू नेशंस थ्योरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी. व्हाट? टू नेशन थ्योरी. यहाँ तो एज इन इंडिया not one but two religion communities are in majority, that is Muslim and Hindu. तो इन दोनों के लिए टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई. ठीक है, क्या हुई? टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई. ठीक है, विच इज इंट्रोड्यूस बाय द मोहम्मद जिन्हा, फरुलुद्दीन जिन्हा, इस तरीके से था उनका नाम. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, यहाँ पे गिवन नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी which is introduced by the Jinhaji two nation theory. Okay, and which is advanced by the Muslim League. India consists of one. India consists of not one but two people. That is whom Muslims and Hindus. So that's why they introduced two nation theory, which demanded a Pakistan a separate country from for the Muslims. अब वो सेपरेट कंट्री चाहते थे क्या, कि मुस्लिम्स की भी एक सेपरेट कंट्री हो और उसका नाम पाकिस्तान हो. सो कांग्रेस ने इसको टोटली अपोज किया. बट ड्यू टू सम डेवलपमेंट्स इन 1940s, ठीक है, and due to Britishers and Muslim leagues, so it's led to the decision and the creation of Pakistan. ये था. अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. ये सबसे मेन है. ओके, यस, लेट्स सी. सबसे फर्स्ट क्या है हमारी प्रायोरिटी, कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. हमें पॉइंट्स में हर चीज लर्न करनी है, दैट इट विल बी इजी. ओके, सो जब तक जो जो कंट्री हमें इंडिया के नाम से, मतलब पूरा बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान और प्लस इंडिया, ये पूरा इंडिया का पार्ट था, जो इंडिया माना जाता था. नाउ इट्स डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड Pakistan. Pakistan. Such a division was not very painful. Painful ही नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही डिफिकल्ट थी ये डिसाइड करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना. ठीक है, और हम कॉन्सिक्वेंस में जानेंगे कि क्या बुरा हाल हुआ इंडिया का, उनकी पीपल का और मुस्लिम लोगों का. क्यों करा गया? बिकॉज मुस्लिम आर इन मेजोरिटी वेयर, इन इन द in the west region, and इस तरफ थे. sorry I'm wrong. Wait. So Pakistan Muslims are in majority in the west one, जो इस तरफ थी, and east one जो इस तरफ थी. तो ईस्ट को और वेस्ट में जब मेजॉरिटी थी, तो यहाँ पे हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता था. हम दोनों पार्ट्स को नहीं मिला सकते थे, इसलिए इंडिया जो उसको पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया एंड पाकिस्तान को वेस्ट कहा गया, बिकॉज ये इंडिया की वजह से अलग हो रहे थे. ठीक है, और उनको कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी सेंस से जोड़ा नहीं जा सकता था. सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ये दोनों अलग अलग हुई. ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हुआ. First of all, there was no single belt of Muslim majority in British India. There were two areas of concentration. कौन से एरिया थे याद रखना, west and one in the east. There was no way these two parts could be joined. कोई भी तरीका नहीं था कि ये parts join हो सके. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, west and east.
यही प्रॉब्लम यहाँ से अब क्रिएट होनी शुरू हो गई, है ना। वो हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि साउथ एशिया वाला है, कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन हुई खराब जैसी वो पाकिस्तान के साथ आई। ओके, देन हमारा और इसमें दैट इज सब वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान separated from the long expanse of Indian territory. ठीक है, no need to explain it. Then we move to the second. Not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. सभी मुस्लिम नहीं चाहते थे that we want a new and a separate country. Okay, Abdul Ghaffar Khan. He is a leader, or maybe somewhat. So he opposed this theory, and he is a leader of Northwestern Frontier Provision and known as Frontier Gandhi. ओके, और इसने थरली अपोस्ट किया टू नेशन थ्योरी के, ऊपर वो कर नहीं पाए, उसकी वॉइस सिंपली इग्नोर कर दी गई। हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे आए, तो दैट इज द प्रॉब्लम दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या हुआ, पंजाब और बंगाल में जब वो हुआ partition. Okay, Punjab area of Pakistan, Bengal area is of Bangladesh. So had a large area where the non-Muslims were in majority. Eventually एकदम से decide किया गया कि ये जो दो provisions हैं would be bifurcating according to the religious majority at the district or lower level. These decisions could not be made at district or lower level. Midnight. Okay, ये डिसीजन इंडिया और इंडिया को पार्टीशन करने का एक मिडनाइट में 14 to 15 अगस्त में ही नहीं कर लिया गया, ये चल रही थी इसके ऊपर कन्वर्सेशन। इससे फिर जब रिजल्ट्स आए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पता ही नहीं था हम कहाँ हैं, हम पाकिस्तान में खड़े हैं या इंडिया में खड़े हैं, कुछ नहीं पता था लोगों को। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ वाला आता है, क्या प्रॉब्लम थी, it was a problem of minorities on both sides of border। ठीक है, दोनों तरफ ही माइनॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी ही थी। lakhs of Hindus and Sikhs in the area that were now in Pakistan। ठीक है, जब भी तो मारकाट बहुत ज्यादा फैली थी, आप लोगों ने व्यू सीन भारत फिल्म। ओके, सो in that film it's shown clearly that what's the situation। ठीक है, and an equally large number of Muslims on the India side of Punjab and Bengal। तो ये situation थी वहां की। ठीक है, they were to discover, sorry, yes, they were to discover that they are undesirable alliance in their own house। मतलब वो कुछ है ही नहीं उनका कोई, मतलब उनके घर में, उनका घर ही नहीं है जिनमें, है ना, इस तरीके से होगी सिचुएशन, जिनके एंसेस्टर्स रहते थे उस घर में, अब उस घर को उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा ड्यू टू द पार्टीशन। ओके, अब नाउ गवर्नमेंट ने सोचा भाई अंडर कंट्रोल में आई जाएगी कुछ दिनों में। नो, वायलेंस बहुत जल्दी ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। माइनॉरिटीज दोनों साइड पर जो थी, वो उन्होंने बॉर्डर को छोड़ दिया। जो जहां चल रहा था भाई वो चलता ही जा रहा था, जो जिसे मार रहा था वो मारता ही जा रहा था। नाउ वेरी मेन एंड important consequences of partition। So first of all and important, that is the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known। ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन हुई, वेरी लार्जेस्ट, मोर एब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड tragic ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, for the noted down, that is there were killings and atrocities on both side of the border। Okay, ये third second, okay, on the name of the religion, people of one community ruthlessly killing the people of another communities, cities like
cities like Lahore, okay, then Lahore, Amritsar, Calcutta, Kolkata became divided into communal zones. ये सब communal zones में divide हो गए थे, ठीक है। मुस्लिम वुड अवॉइड, अब जो थे मुस्लिम्स जो थे वो अवॉइड कर रहे थे ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे हिंदूज और सिख्स मेजोरिटी में थे, है ना। हिंदूज एंड सिख्स वहां पे जाने से दूर हो रहे थे जहाँ पे मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंस थी। तो ये सब चीज भाई उल्टा पुल्टा हो गया था मामला। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर fled their homes and often secured temporary shelters in refugees. Many of the minorities have to leave their home of their ancestors and uh, migrate to some another to the across the border, so they have to live in the, sorry, in the refugee camps, ठीक है। देन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो उन्हें बेचारों को फुट से ही चलना पड़ा, ठीक है। जर्नी के दौरान अटैक्ड हुए, किल्ड हुए, रेप्ड हुए, है ना। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, ओके, दोनों साइड्स बॉर्डर पे उन्हें फोर्स्ड करा गया मैरिजेस के लिए, हाँ सॉरी, मैरिजेस के लिए फोर्स्ड करा गया, है ना। एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली ऑनर्स के लिए वुमेन्स को किल कर दिया, ठीक है। बहुत सारे चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए, इस तरीके की सिचुएशन कम क्रिएट हो गई थी। For lakhs of these refugees, the country freedom meant like a refugee camp for months. Okay, after when the refugees started living in refugee camp, so country situation become critical, है ना। और वो refugees camp are meant till months and sometimes for years, ठीक है। फिल्म राइटर, पोएट्स ने सब ने अपने फिल्मों में इसके बारे में बताया, है ना। फिल्म मेनली इस पे बनाई उस टाइम पे, क्योंकि जो चीज फेमस होती है बॉलीवुड उसकी तरफ पहले भागता है। एंड यू नो, सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉपर्टीज या लाइबिलिटीज की ही अदला बदली हो या फिर एसेट्स और पॉलिटिकल डिवीजन, सॉरी, यस, एसेट्स और पॉलिटिकल डिवीजन इनकी हो, नो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके रेलवेज एम्प्लॉयज तक, ठीक है, कम्युनिटीज तक, ये सब पार्टीशन हुआ। जब 1951 में वो हुआ, सेंसस हेल्ड हुआ होगा, तो मुस्लिम पॉपुलेशन 12% पाई गई हमारी इंडिया में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यस, सबसे मेन पार्ट हमारा यही आता है इसका, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया था ब्रिटिश इंडिया में और प्रोविजंस, सॉरी, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में एंड द प्रिंसली स्टेट्स, किसमें, ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस में एंड द प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस थे, बीआईपी, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो तो किंगडम किंग्स ही रूल करते थे ना, उनको ब्रिटिशर्स का कुछ रोल नहीं था, ठीक है। ओके, और ये सब ऐसे ही थोड़ा सा है, पैरामाउंट सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। सब थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता था अगर ब्रिटिशर्स का उस किंगडम पे इंटरनल अफेयर्स में किसी भी चीज में, सो दैट इज, उसको वहां पे टर्म दे दी गई पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब देखते हैं जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से क्या क्या सिचुएशन झेलनी पड़ी। पहली, ब्रिटिश दैट, जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया भाई हम अब जा रहे हैं, जिसको जहां जाना है तुम जा सकते हो, जिसको जो कंट्री ज्वाइन करना है, पाकिस्तान करो चाहे इंडिया करो चाहे इंडिपेंडेंट रहो चाहे के रूल करते रहो, now it's your wish what you want to, if you want to join any of the country, so you can join easily, no one will
put constant. So what happened at first? Ruler of Transvaal announced that state has decided to independence होने के लिए जो त्रिवांकोर के रूरल था सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया। फिर जो निजाम थे हैदराबाद के उन्होंने अनाउंस किया कि हैदराबाद ने कुछ सिमिलर अनाउंसमेंट करी, ठीक है, उसी तरीके से कि वो नहीं इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपने आप ही बट इंडिया को ज्वाइन नहीं करेंगे। रूरल्स जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल थे, ठीक है, तो इन्होंने तो कर लिया था ज्वाइन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ओके, so in response to the rulers of the princely states made that after independence there was a large real possibility that India will got further divided into, okay, अब now ये tension थी कि when if and now India divided into three parts, sorry two, so now due to these princely states India will again divided into so many more pieces, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अप्रोच का टॉपिक इस साल नहीं है, तो इस साल भी नहीं सबके लिए ही हो गया है। इसमें सिर्फ हमने ये इम्पोर्टेंट है हमारा, यहाँ से इंडिया डिप्यूटी से प्राइम मिनिस्टर से लास्ट तक। ओके, वो मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ा दिया था जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं विद द नेम ऑफ पॉलिटिकल साइंस PDF released by the CBSE for the 12th class students, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने हैदराबाद की सिचुएशन। अब हैदराबाद पे आ जाते हैं। हैदराबाद ने फर्स्ट इंडिया साइंड अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द निजाम इन नवंबर 1947, ठीक है, नेगोशिएट करने के लिए इंडिया ने पहले साइन किया। तो क्या हुआ, उन्होंने कर दिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं भूल गई हूँ आपको बताना। यस, 1947 से पहले पीसफुल नेगोशिएशन हैज बोथ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, सारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी सबका पीसफुल नेगोशिएशन हो गया था इंडिपेंडेंस से पहले, 1947 से पहले। बट ये जो थ्री थी, जूनागढ़, मणिपुर एंड हैदराबाद, इन तीनों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी, इसलिए ये 1950 तक इंडिया से मींस इंडिया को ज्वाइन करा इन्होंने। तो किस किस इंस्ट्रूमेंट से, किस एग्रीमेंट से ज्वाइन करा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, which meant that their states agreed to become a part of Union of India। ये इसलिए था, ठीक है, ये पढ़ना आपके लिए जरूरी था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ज्यादा है। ओके, देन क्या था हमारा, जब when the Telangana peasants in Telangana region in a वो their wisdom of Nizam's oppressive rule, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करी। जब प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गई तो अब जो था निजाम था, now he sent the Nizam razakars of the people who were the paramilitary force of Hyderabad government, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने मर्डर किए, रेप किए, मेप किए बहुत सारे, तो वो ठीक नहीं था, लूटा भी। तो फिर आर्मी को टैकल करनी पड़ी सिचुएशन, इंडियन आर्मी को। देन इन सितंबर 1948 निजाम ने भी हार मानकर वो इंडिया को हैदराबाद दे दिया। मणिपुर की स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट। वो कैसे, जो महाराजा थे वहां के मणिपुर के बौद्धचार्य सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन तो साइन करा था बट विद द पर्पस with the under the pressure of the public opinion, the Maharaja held elections in Manipur in June 1948। तो सबसे मेन था कि उन्होंने 1948 में इलेक्शंस हेल्ड करे
पीपल के दबाव से। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था इंडिया गवर्नमेंट का, उसमें था कि वो उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन रखेंगे। सिर्फ इसलिए महाराजा बोध चंद्र सिंह ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। जो 1948 में उन्होंने इलेक्शन हेल्ड किया, जिसमें वो इलेक्ट होके कॉन्स्टिट्यूंट मोनार्की बन गई हैदराबाद, नॉट हैदराबाद, मणिपुर। यस। देन इन सितंबर 1948 इंडिया की गवर्नमेंट्स ने मना ही लिया बौद्ध चंद्र सिंह को। इस इंस्ट्रूमेंट एक एग्रीमेंट था, मर्जर एग्रीमेंट, उस पर साइन करने के लिए मर्जर एग्रीमेंट मना ही लिया। ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब रीऑर्गेनाइज स्टेट्स करनी थी अकॉर्डिंग टू द boundary in a way so that linguistic and cultural polarity of the country could be reflected, means कल्चरल और लिंग्विस्टिक पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली ही इंडिया को वो अपनी स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करनी थी। ठीक है। सो कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग जो स्टेट बाउंड्री थी वो ड्रॉ ढंग से नहीं करी गई थी, सिर्फ काम चलाओ काम वाला सिस्टम था। ठीक है। जब हमारा नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ 1920 में, तो जब वहाँ पे रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, मींस उन्होंने सोचा कि हमें करना चाहिए, बट many congress committees were created by linguistic zones which did not follow the एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया ने जो भी मैप बनाया था, जैसा भी, वो फॉलो नहीं किया, किसी ने भी उसका नया बनाया है ना, कुछ कांग्रेस। ठीक है। तो जो सेंट्रल लीडर था, तो उसने पोस्टपोन कर दिया कि अभी कोई जरूरत नहीं है बनाने की। ठीक है। इससे मींस भेदभाव बढ़ जाएगा कि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग, तो अलग अलग कर देंगे लैंग्वेज वगैरह, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने that's why they didn't make any of the national boundaries। अब हमारा मेन थिंग यहाँ से शुरू होती है। The decision of the national leadership was challenged by the local leadership of the leaders of and the people। सो नेशनल लीडरशिप का जो चैलेंज था वो लोकल लीडर्स और पीपल ने बिल्कुल पूरी तरह से चैलेंज कर दिया था, अपोज कर दिया था। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई पहले तेंगलू स्पीकिंग में, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, because Telugu speaking areas in the old Madras provinces, which includes present day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, तो प्रॉब्लम होती थी स्पीक करने में। विशालंद्रा मूवमेंट डिमांडेड दैट, तो यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हो गई कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पे एक इंसिडेंस है, जो पोटी श्रीरामुलु जी हैं, कांग्रेस के लीडर, वो 56 डेज में के लिए वहां पे गए थे उसको वायलेंस को रुकवाने, तो वो वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई। फाइनली इंडिया ने जो है दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को इंडिपेंडेंट स्टेटस देके, फॉर्मुलेशन उसके लैंग्वेज कल्चर को करके दिसंबर 1952 में उसे डिक्लेयर कर दिया था। फिर आता है हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ठीक है। फिर क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पास करी गई 1953 में, ताकि सबकी ही बनाई जाए, क्योंकि एक ही बनाने से काम नहीं चलेगा ना। तो फिर जब एक्ट पास होके आया तो 1956 में उसने बताया, उसमें पता चला कि 14 states and 6 union territories are there in our India। Okay, and with this our chapter ended। Yes, it's important कि कौन कौन सी स्टेट्स कौन कौन सी ईयर को करती है। वैसे इतना डीपली पूछा नहीं जाता, फिर भी फॉर द नॉलेज। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको ये हर एक चीज लाइन वाइज प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है। ओके,
So we'll meet the next video. If you want my notes, so go to my Instagram ID and follow me 4569132 Riya. Bye bye.